All right. So this is like a type 2. Type 2 मतलब क्या हो गया? When I'm forming a frequency table, I have taken the same example and I wrote its x and f value, right, in the frequency table form. You know how to form frequency table. You have learned it. Okay. This is x value and this is the f value. Now, before uh, doing further working in the table, let me explain you over here that what it is showing. See, basically, you have these values over here. So if I ask you to find out its mean, what will you do? You will add them up, 0 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2, so on. That will give you 24. So what you are doing, 0 is 0, 1 plus 1 means 2, 2 plus 2 means 4, 3 is 9, 4 is only one time, this and 5. So cannot I do this thing as 1 is how many times? 1 times 2. Look at the yellow one. 1 times 2. 2 twos are 4. I do 2 plus 2 or I do 2 multiplied by 2. It's the same thing. I do 3 plus 3 or I write 3 into 3 is 9. I write 4 or I write 4 times 1. It's 4 times 1 written with yellow. It's the same thing, right? It's the same thing. There's no difference in it. So what I've learned from this yellow portion, which is the multiplication, that actually when I do 1 times 2, 2 times 2, 3 times 3, 4 times 1, 5 times 1, I'm getting these same values whose adding up will give me 24. This is summation x, adding value, right? Okay, so this thing I can do in this column of fx. Look over here, fx. Fx means 0 is 1 times, 0 1 is 0, 1 is 2 times, 2 is 2 times, 3 is 3 times. It's the same thing which I explained you over here. So this fx column means I am adding up all the values, right? So I will simply do 0 times 1, f or x is multiplying. So just multiply x and f. 0 1s are 0, 1 2s are 2, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 1s are 4, 5 1s are 5. Add them up, this is 24. So basically, this summation x which I wrote here is same as this summation fx. Why I wrote the word summation here? Because summation means sum. Sum what? Sum the fx column, right? This is summation. Summation is a Greek letter. I wrote over here also. I want to show you because when I've sent the picture of this page, you should know what I have written. What is the meaning of all? This is a symbol, Greek letter, which is read as summation, which means sum. Sum what? Add which column? Fx column. So just add Fx column. This is summation Fx. So summation Fx is, okay, summation Fx is same as summation x. All right. So what is the mean? Mean is summation x upon n. This is what we have learned. So summation x is basically over here is 24, right? So now I can write mean as summation fx because summation fx is same as summation x upon n. N is 10. N. So n is basically the sum of which column? F. So this is summation f. So the mean is for the group data is summation fx upon summation f. So f and this f is nothing different from this. This is same. But earlier we do not need to write in the frequency form. When we are writing the frequency form, then we write like this, summation fx upon summation f. This is the same thing. So you have to make this column of fx only for what purpose? Only to find out the mean. So this column is needed only to find out the mean. So summation fx divided by summation f will give you the mean. Is this clear now, mean? Okay, now coming to the median. Here I have just given one more example. If
2 is occurring 5 times, so I do 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, that will give me 10. Or I do 2 times 5 times 5. So this f is basically, this 5 is basically frequency, right? So this will also give me 10. So this is the concept why we do multiply f with x. That's the reason, okay, because that will give me the sum of that number. Okay, so this is clear. Now coming to the median. Remember, for median, we have to form the CF column. Okay, so what is my CF column? CF column stands for cumulative frequency. Cumulate, add up. ठीक है, ऐड कर दें, किसको ऐड कर दें? फ्रीक्वेंसीज को. ओके, सो लेट्स चेक इट आउट हाउ आई कैन form the CF column. So for the CF column, which is used for the median purpose, write the first frequency as it is, 1 over here, right? Then 1 plus 2 is 3 here. Then 3 plus 2 is 5 here. And then 5 plus 3, 8. 8 plus 1, 9. 9 plus 1, 10. This answer should be same as this answer. We are getting same, so that means we are doing right. What this CF showing it to you? This shows that, look here, when I write in the order, so one thing I think I forgot to tell you for the median. Whenever you are finding the median now, right, remember you have to arrange the data in ascending or descending order. Otherwise, you will get the wrong answer. Because see, we do the cancellation now. If it is in the other order, you will have the wrong central value. So first of all, do write in order, either ascending order or descending order. Both are okay. You can also do like starting with 4 here, 4 comma 3 3 3 comma 2 2 comma 1 comma 1 comma 0. So it can be ascending or descending order, but it has to be in order. All right, Achha, look over here. I have written in order these numbers. So this is the first value, this is the second value, orange are the values, second value, third value, fourth, fifth, sixth. So when I write over here, now you have to match this with this orange thing, right? First value, this is the, this 1 3 5 is, you know what, this is the first, third, fifth, eighth, ninth, 10th. So first value is, or till first value is 0, till third value is 1. till का मतलब क्या है? 3 तक. So 0 और 1 कहाँ तक आ रहे हैं? 3 तक. Is it like 0 1 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू तक 0 और 1 कवर हो रहे हैं. फिफ्थ वैल्यू तक 0 1 2 कवर हो रहे हैं. एट वैल्यू तक 0 1 2 3 कवर हो रहे हैं. इट्स जस्ट टेलिंग यू कि एंड ऑफ एवरी नंबर यहाँ तक क्या कवर हो रहा है. तो यहाँ से मैं ये बात वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ कि 0 जो है वो सिर्फ फर्स्ट वैल्यू है. थर्ड का मतलब ये है, फर्स्ट यहाँ हो गई, कि सेकंड और थर्ड वैल्यू कौन सी है? 1 है. थर्ड के बाद मैं लिख सकती हूँ फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू इज 2. फिफ्थ के बाद यहाँ आ जाएगा सिक्स, सेवेंथ, एट वैल्यू इज 3. सिंगल वैल्यू है तो नाइन्थ वैल्यू इज 4 एंड टेंथ वैल्यू इज 5, which is clear from this orange one also, right? So this tells me okay, what value is still which position. Now median, what was the method of median? N upon 2. I'm using my conventional method. Okay, you can use those proper method formulas, it's up to you, but I know you people, you will also use this one. N upon 2, simply 10 divided by 2, fifth. So fifth means it's an even number. I should have two numbers in the center. So I want fifth and sixth value. So let's check. Till here one value, fifth value. So the fifth value is 2
and the sixth is definitely falling here because 6, 7, 8 is here. So fifth is 2 and sixth is 3. So I will pick this 2 and 3, the red one. See, all right, red one, 2 and 3. I wrote here 2 plus 3 upon 2 and this is 2.5, right? So the same answer because I am doing with the frequency table method, the same question which I had done with you earlier. Okay? I will take एक्सक्यूज this. मी मैम, Yes. मैम मुझे ये मीडियन का ये वाला मेथड क्लियरली समझ नहीं आया प्रॉपर। Which one? कि ये CF कॉलम मैम की ये नो मैम, मीडियन। नहीं, ये कह रही हैं आप ये चीज? यस मैम। ओके, ये समझ आ गया CF कॉलम? यस मैम। Okay, I have formed the CF column, right? After forming the CF column, pick up the total number of frequency from here, which is 10. So what is the concept of median? Divide in two parts. So I will do 10 divided by 2. So 10 divided by 2 give me fifth value. And I have already explained it to you. Whenever we have even number of values, we always have two numbers in the center. So first number should be fifth value and the other number should be the next value, which is the sixth value. So मुझे इस फ्रीक्वेंसी टेबल से अब देखो इसका काम हट गया है. आई डोंट want to see this fx column because fx column is only used for the mean. अब मेरे पास frequency है. From frequency I have taken out cf column. अब cf column को देखते हुए I have to find out median from x column. अब median के लिए मुझे पता है which value I want the fifth and the sixth value. अब इसमें से मैं फिफ्थ और सिक्स वैल्यू कैसे ढूंढूंगी? मैं ऐसे ढूंढूंगी, यहाँ तक कितनी वैल्यू कवर हो रही है? वन वैल्यू. यहाँ तक कितनी हो रही है? थर्ड वैल्यू. मुझे फिफ्थ चाहिए. यहाँ तक कितनी हो रही है? फिफ्थ. ओके, फिफ्थ वैल्यू इस क्लास में मौजूद है, तो फिफ्थ वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? टू होनी चाहिए. और मैं यहाँ से प्रूव भी कर सकती हूँ. फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. बिल्कुल सही बात है. फिफ्थ वैल्यू कौन सी? टू है ना. तो यहाँ से मैंने फिफ्थ को देख के, याद रखें दिस यू हैव टू चेक इट फ्रॉम द CF कॉलम. तो यहाँ से आपने फिफ्थ को देखा और फिफ्थ के अगेंस्ट आपने जो वैल्यू थी टू वो उठाई और वो यहाँ पुट इन कर दी. दिस इज द फिफ्थ वैल्यू. अब हम आ जाते हैं सिक्स वैल्यू. फिफ्थ तो यहाँ तक थी. अब सिक्स कहाँ फॉल कर रहा है? यहाँ तक तो फाइव है, सिक्स तो इसमें फॉल करेगा ना. तो जब सिक्स इसमें फॉल करेगा तो इसके अगेंस्ट कौन सी एक्स वैल्यू है? वैल्यूज आपकी ये हैं, ये इतने टाइम्स अकर हो रही हैं, ये आपकी वैल्यूज नहीं है. दीज आर योर वैल्यूज. दिस इज थ्री. तो अब ये थ्री आपने लिखा सिक्स वाली पोजिशन पे. तो टू प्लस थ्री डिवाइडेड बाई, ये प्लस क्यों किया? ये मैं आपको पहले ही सारा कुछ इस पेज पे ऑलरेडी मीडियन के उसमें मैं समझा चुकी हूँ कि जब भी इवन होता है तो हम दो वैल्यूज को ऐड करते हैं, डिवाइड बाई टू करते हैं. ठीक है ना, ये चीज यस एक्सप्लेन. मैम, ये जो एन अपॉन टू और मैम ये दूसरे पेज पर, हाँ. मैम ये जो ब्लू में है हम्म. एन अपॉन टू, आई गेस ये प्लस है, ब्लर है मैम, नजर नहीं आ रहा इवन साइड पर। इधर वाला पर. यस मैम यस मैम, ये फॉर्मूला मुझे समझ नहीं आया ये कि कहाँ? एन अपॉन टू, हाँ. एन एन मीन्स कि हाईएस्ट वैल्यू हमने लिए 10th। नहीं, हाईएस्ट नहीं लिए, टोटल वैल्यूज लिए. हाईएस्ट का ताल्लुक मोड से है. ये मोड नहीं है, ये मीडियन है ना. तो मीडियन में एन कितनी है? आपने देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 वैल्यूज हैं. तो 10, ये 10th है, लेकिन टोटल वैल्यूज कितनी? 10 है ना. तो ये एन, ये 10 है आपका. ठीक है. 10 डिवाइडेड बाई 2 आपने किया तो आपके पास आंसर क्या आया है? फिफ्थ आया है. यस राइट, मैम। फिफ्थ वैल्यू. 5 is not your median. Your median is the fifth value. अब अगर देखा जाए, क्या मीडियन आपका सिर्फ ये फिफ्थ वैल्यू आपका मीडियन है? यहाँ हम प्रूफ नो। कर चुके हैं कि जब भी इवन होता है तो सेंटर में दो वैल्यूज आती हैं, है ना. तो एक्चुअली सिर्फ फिफ्थ तो नहीं होनी चाहिए, फिफ्थ और सिक्स भी होनी चाहिए. तभी मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपके पास होल नंबर आएगा तो आपको याद रखना है कि आपने वो नंबर लेना है, ये वाला नंबर लेना है, प्लस आपने उससे अगला वाला भी खुद से ले लेना है. यानी कि अगर आपके पास n जो है, n मेरे पास अगर 50 है, ये क्या है? 50 इवन नंबर है, राइट. सो व्हाट आई विल डू,
n अपॉन 2 का मतलब है 50 अपॉन 2 विच मीन्स 25th वैल्यू। ये सब टी एच है, ये टी एच है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो मेरी मीडियन बनेगा ना वो बनेगा 25th वैल्यू प्लस आप खुद से अगला ले लें 26 वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज यू नो कि ये इवन है और इवन में हमेशा अगर मैं कैंसिल करती हूँ तो बीच में दो वैल्यूज आती हैं, एक तो ये वाली आएगी और एक उसकी नेक्स्ट वाली होगी। अब डेटा में से मैं ये दोनों आंसर्स लिखूंगी जो भी होंगे और डिवाइड बाय 2 कर लूंगी। समझ आई बात? तो यही रीज़न है कि मैंने जो है यहाँ पे भी इसका तो आंसर 5 फिफ्थ ये लिखा है मैंने, और अगला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आई हैव एक्सप्लेन यू हियर कि सेंटर में दो आ रहे हैं। तो ये मैंने खुद आपसे अभी शुरू में बार बार मैं बोल रही हूँ, ये एक ईजी वे है फार्मूला। एक्चुअल फार्मूले तो ये अगर आप एक्चुअल फार्मूला यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास दो वैल्यू आ गई ना कि दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो फिर तब एक्चुअल यूज करो तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कोई बात नहीं है। मैंने आपको, लेकिन इट्स माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग। तो मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया है, मैं आपको आसान भी बता दिया। इट्स अप टू यू कि आप इसमें से कैसे यूज करेंगे। अब यही कॉन्सेप्ट मैंने इधर यूज किया क्योंकि ये एक ही सवाल मैं कैरी ऑन कर रही हूँ, वो मैंने किया है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म में किया है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में आई फॉर्म सी एफ का कॉलम। यहाँ आपने एक नई चीज़ सिर्फ सी एफ कॉलम बनाना सीखी है और इसी मीडियन को मैं सी एफ कॉलम से निकालूंगी। मीडियन यहाँ एन, एन आपका ये चीज़ है, आप समीशन एफ बोलो या आप इसको एन बोलो, इज द सेम थिंग। एन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो एन 10 है यहाँ पे। तो 10 अपॉन 2, 2 क्यों मैं 2 इसलिए हमेशा लिखती हूँ, मीडियन इज ऑलवेज डिवाइडेड द होल थिंग इन टू पार्ट्स। सो 10 डिवाइड बाई 2 गिव मी फिफ्थ वैल्यू। तो फिफ्थ वैल्यू कौन सी है? ये है 2 है, लेकिन मुझे पता है कि क्योंकि इवन है तो दो होनी चाहिए, एक फिफ्थ होगी एक सिक्स। तो फिफ्थ और सिक्स यहाँ होगी, ये आ गया ये थर्ड। तो आई डिड 2 plus 3 divided by 2 which is 2.5. Got it now? Yes, ma'am. It's clear now. ओके। Thank you. अच्छा, आप लोग के समझाने के लिए थोड़ा सा एक बात मुझे बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ दिस इज 14। For example, the sum of these values is 14. So 14 is again even number. So I will do 14 divided by 2, which will give me the 7. 14 is the, थोड़ा सा हम अपने लिए ले रहे हैं एग्जाम्पल ये कि मेरे पास n ये है 14, n का मतलब है समीशन f। सो 14 डिवाइडेड बाय 2 मतलब है is the seventh value, even है। So I need to take the seventh and eighth value and then divide by 2। seventh, अब लोग over here सपोज कर लो इन सबका सम 14 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक 1 है, 3 है, यहाँ तक 5 है। तो 7 और 8 दोनों इधर फॉल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 6 7 8 यहाँ पर है। तो 7 और 8 यहीं पर है, तो 7 भी 3 होगी और 8 भी 3 होगी। तो मैं लिखूंगी 3 plus 3 divided by 2, so the answer is 3 because 6 divided by 2 is 3। Got it? ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं इसी को लेके। अब n14 नहीं मैं लेती, मैं कहती हूँ कि n मेरे पास क्या है, n जो है वो 11 है, 10 नहीं है, 11 है। So 11 upon 2 किया, which will give me answer 5.5. So I have to take the sixth value. Which is the sixth value here? Till here 5, 6 इधर fall कर रही है, so my median is 3. Got it now? So इस केस में मेरा median क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। इस तरह से आपने निकालना है वैल्यू। ओके, नाउ आफ्टर दैट कमिंग टू द मोड। मोड तो हमेशा से मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी आसान है। मोड इज द हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू, लुक एट द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये याद रखना है, एफ एक्स कॉलम विल बी यूज्ड फॉर मीन, दिस इज फॉर मीडियन। मोड के लिए आपको फ्रीक्वेंसीज में से देखना है कौन सा नंबर हाईएस्ट अकर हो रहा है, 3 हो रहा है। कि कौन सा नंबर है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स। कौन सा नंबर 3 टाइम्स अकर हो रहा है, दैट इज by chance it's again 3 here. So this is your mode. This is not your mode. This is not your mode. Mode is this. Okay, because this is occurring 3 times. So this is your mode. All right. By chance ये हो गया कि दोनों 3 3 हो गए।
सपोज कर लो यहाँ पे आपका होता 4 होता 4, तो मोड आपकी ये वाली वैल्यू होती, ठीक है। अगर ये 4 होता तो 4 के अगेंस्ट क्या था, दिस 2, तो ये आपका मोड होता, राइट। देखिए 6th वैल्यू कौन सी है आपकी, आप इसमें से समझें। 6th वैल्यू इज फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th वैल्यू, 7th वैल्यू, 8th वैल्यू, तो 6 भी थर्ड है और 7 भी थर्ड है। अगर मैं ऐसे समझूं तो यहाँ तक कितनी वैल्यूज कवर हो रही हैं, 0। 0 कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है। इट्स नॉट के हाईएस्ट पोजीशन फर्स्ट, मतलब ऑर्डर में बात कर रही हूँ, पहली सबसे सबसे पहले 0 खड़ा हुआ है। फिर 1 कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड और थर्ड पर, क्योंकि फर्स्ट पे तो 0 है। 1 सेकंड और थर्ड पर है। टिल 3 का मतलब है कि यहाँ तक 1 2 3 मिला के 0 1 हो गए। 5 का मतलब है कि 1 2 3 4 5 मिला के कौन कौन खड़ा हुआ है, 0 1 और 2 खड़े हुए हैं, ठीक है। तो 6th to 7th पोजीशन, यू हैव आस्क्ड कि 3 ही क्यों है 6 to 7 पे, बिकॉज ओके ओके फाइन, सो 6th 7th 8th तीनों दोनों इधर आ जाएंगे, ऑलराइट। ओके जी, ठीक है, मीडियन क्लियर हो गया। दिस इज ऑल अबाउट मीडियन। कोई और प्रॉब्लम हो, डू प्लीज आस्क मी एनी टाइम। और मोड भी मैंने आपको बता दिया कि जस्ट लुक ओवर हियर एंड गेट द आंसर। अच्छा, अभी इसमें एक और बात मुझे जरा बता दो। यही मेरे पास टेबल है, 10 मिनट्स ही रह गए इसके खत्म होने में। ओके, यही टेबल है, 0 1 2 3 4 5 हो जाता है। फ्रीक्वेंसी में अपनी तरफ से आई एम चेंजिंग इट, आई एम टेकिंग इट 1 2 4 2 4 and something, let's call it again 1. Okay, so now look over here, and which should be the mode. This number is maximum and this is also maximum, so you have two mode. This is your mode and this is your mode, so you will write it's a bimodal. Don't do 2 plus 4 divided by 2, don't do this. You will write modes are 2 and 4. If you forget the name bimodal, then you can simply write modes are 2 and 4. Okay, so this is how you will write down about the mode. All right, hope till here all the thing is clear. um, Now coming to the last part quickly, that is the type 3. Okay, so type 1 and type 2 are a bit connected with each other. I have explained you. Type 3, when the data is given the interval form. Okay, I have taken the example over here. डोंट वरी, मैं सारी पिक्स आपको भेज दूंगी, सो आप उससे भी मैच करना और फिर वीडियो वापस से सुन लिएगा, तो यू विल बी ऑल क्लियर अबाउट इट। टाइप 3, अच्छा जी, टाइप 3 में अगेन द इंटरवल्स विल बी गिवन टू यू एंड द फ्रीक्वेंसीज। अभी जो मैंने पर्पल लिखा हुआ है, रेड, इस सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। आपके पास नहीं, ऑरेंज और रेड भूल जाए, पर्पल को खाली देखें। पर्पल में आपको ये इंटरवल्स गिवन हुए हैं। क्या इंटरवल्स हैं आपके पास, कि 4 to 6, इट कैन बी एज, इट कैन बी मार्क्स, इट कैन बी एनीथिंग। हम थोड़ी देर के लिए इसको मार्क्स ही ज्यूम कर लेते हैं कि 4 से 6 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, 7 से 9 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के आए हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। 21 19 से 21 आए, हमारा था 4 से 21, हो सकता है इससे पीछे के जो 1 से 3 मार्क्स होंगे उसमें फ्रीक्वेंसी 0, दैट्स व्हाई आई हैवंट रिटन। इट कैन बी एनी रीजन, व्हाटएवर इज द रीजन, इंटरवल्स आपको गिवन है। अच्छा, अब पहली बात, इंटरवल्स कैन बी लिमिट्स एंड कैन बी बाउंड्रीज। अब ये सारा पीछे से जो लेक्चर हमने पहले किया हुआ है उससे कनेक्टेड है, ठीक है। सो अब मैं क्योंकि इज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों ने पीछे का सब चीज़ रिवाइज कर लिया है, तो मैं वापस इसको रिकैप नहीं करूँगी, इसीलिए मैंने कहा था कि पढ़ के ही आइएगा बाकी सारी चीज़ें। अच्छा, क्या है इसमें, बस कुछ नहीं है। ओके, सो दीज आर द इंटरवल्स गिवन एंड दीज आर द फ्रीक्वेंसीज गिवन। फर्स्ट थिंग वी नीड टू फाइंड आउट द मीन, ऑलराइट। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, सबसे पहले हमने निकालना है मीन ऑफ द डेटा, ये रहा। अच्छा जी, मीन का क्या फार्मूला हमें पता है,
इट्स समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, यही फार्मूला है, राइट? अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये तो फार्मूला है, राइट? इतना प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या करना है, हर एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज व्हाट वी हैव डन अर्लियर, एफ को एक्स से। ओके, नाउ द प्रॉब्लम कम, एफ तो ये रहा, पर एक्स क्या है, व्हाट इट इज शोइंग, दिस क्लास हैज टू वैल्यूज, ये टू ये शो कर रहा है कि इस क्लास का कोई नंबर दो दफा आ रहा है। हो सकता है फोर दो दफा आ रहा हो, फोर फोर, हो सकता है एक स्टूडेंट के 4 मार्क हो, एक के 5 हो सकता है टू स्टूडेंट्स आर इन दिस क्लास, एक के 5 हो, एक के 6 हो सकता है दोनों के 6 हो सकता है एक का 4 हो, एक का 6 हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन मेनी पॉसिबिलिटीज, एम आई राइट? अच्छा, check it out, I'm just checking everything. I will tell you when we have to convert. Right now whatever is given, let's see when we have to convert class intervals into boundaries, okay, in which cases. अच्छा, तो 4.5 अगर मार्क्स किसी के हों और 5.5 हो तो और पॉसिबिलिटीज बढ़ गई कि 2 मार्क्स में से हो सकता है एक स्टूडेंट्स के 4 नंबर हों और दूसरे के 4.5 हों. सो आई डोंट नो व्हाट आर दोज 2 मार्क्स. ओके, नाउ आई एम कंफ्यूज बिकॉज टू फाइंड आउट मीन, द फार्मूला फॉर मीन इज summation fx upon summation f. I have to multiply f with x value. So the confusion is, should I multiply 2 with 4, 2 with 6, 2 with 5, or I should take 1 4, 1 6. Oh my god. To avoid this confusion, to make my work easy, I will say, all right, let's do one thing. Assume. What? Assume. Let's think. Let's assume that all the marks, ये जो 2 नंबर हैं, ये इनके मिड वैल्यू में ले लूंगी कि ये हर स्टूडेंट ने, ये दोनों स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए हैं, इनके मिडिल में क्या आता है, 4 6 5, दोनों स्टूडेंट्स ने 5 5 मार्क्स लिए हैं, चारों स्टूडेंट्स ने, फोर स्टूडेंट्स हैं, चार के चार स्टूडेंट्स ने 8 8 8 मार्क्स ले लिए हैं. सिर्फ मुझे ये काम इसलिए करना पड़ा ताकि मेरे पास एक एक्स कॉलम आ जाए. दिस इज द एक्स कॉलम. एक्स कॉलम इज द मिड पॉइंट, मिडिल वैल्यू लिखा है मैंने, यानी कि मिड पॉइंट. नाउ अगेन क्लास, बहुत क्विकली क्योंकि आपके पास प्रीवियस स्लाइड्स में मौजूद है. व्हाट इज द मिड वैल्यू, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, अगर आपके पास लिमिट्स गिवन है, सो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, और आपके पास अगर बाउंड्रीज हैं तो अपर बाउंड्रीज प्लस लोअर बाउंड्री डिवाइड बाय 2, both will give you the midpoints. Okay, so now coming back over here, I have limits here. What I have given, limits here, because there's a gap. It's ending at 6, starting at 7, ending at 9, starting at 10, 12, 13. ठीक है, लिमिट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फार्मूला तो सेम रहेगा. 4 plus 6 which is 10, 10 divided by 2, 5. ओके, वंस आई हैव रिटन, बाकियों मैंने सिर्फ डायरेक्ट आंसर्स लिखे हैं. 7 और 9 का मिड पॉइंट 8 आ जाएगा, 10 और 12 का 11 हो जाएगा, 13 15 का 14, राइट? सो दिस इज अ मिड पॉइंट एंड आई एम assuming that all 4 students got 8 marks, all 6 students got 11 marks. This is actually not like this, but by looking at back I cannot find out. यही फायदा होता है कि जब हम डेटा को इस फॉर्म में लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म सिंगल में, तो हमारे पास बिल्कुल आ जाता है वो 2 मार्क्स कौन से हैं, वो 3 मार्क्स कौन से हैं, ये 1 मार्क कौन सा है. बट व्हेन द क्लासेस आर गिवन, दैट इज अ ड्रॉबैक, आई कैन नॉट फाइंड आउट. बट हमने काम तो करना है, वी कैन नॉट स्टॉप ओवर हियर. सो आई विल do the same thing. I will multiply each f with x which is given over here. ठीक है, 2 5s are 10, 4 8s are 32. fx कॉलम आ गया, fx कॉलम के सम को I will divide it by f to get the mean. पुराना तरीका मीन, ठीक है. तो ये मेरे पास मीन आ गया 235 अपॉन. चूंकि दिस इज नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट तो नहीं है ना, ये तो हमने खुद से x लिया है ना, मिड पॉइंट लिया है. दैट्स द रीजन यू विल सी कि in many questions it is written find out the approximate mean
estimated mean. So whatever these words are written, approximated likha ho, estimated likha ho, you don't have to be worried about it. That simply mean the mean. बस वही करना है, सिर्फ उसमें आपने मिड पॉइंट खुद से निकालना है. राइट, टिल हियर क्लियर? ओके, अभी आपका सवाल जो मैना ने किया है, अभी हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं. आई डोंट नीड टू कन्वर्ट राइट एंड बाउंड्रीज. व्हेन आई नीड इट देन आई विल कन्वर्ट लिमिट्स इनटू बाउंड्रीज. आई नो दीज आर लिमिट्स, I know these are limits, but right now I am not converting it. Okay, okay. 1 minute left, and I need to do median also here. I cannot cover median, so again I'm disconnecting it, and then I will connect back. Okay. And join please quickly. मुझे wait करना होता है कि students की ज़रा वो आ जाए, क्योंकि मैंने फिनिश करना है, तो please join quickly.